So hello, this is Forensic Science by Shreya. Today we are going to talk about forensic toxicology. So what is forensic toxicology? Further we are going to talk about what is forensic toxicology. Second, what are the objectives of forensic toxicology, significances, and what about the history of forensic toxicology? Who is the father of modern father and old father of forensic toxicology? So, without any delay, let's get started. So, first we are going to talk about what is forensic toxicology. So, basically, forensic toxicology is the branch of science that where we deals with the study of poison basically in legal cases, in administration cases, and in cases of judiciary system or justice system. So, अगर हम बात करें फर्दर व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी सो देयर आर ओनली थ्री ऑब्जेक्टिव्स मेजर ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट वन इज द कॉज ऑफ डेथ second one is the time since death and third one is like find out the manner of death like what are the manner mode okay ठीक है तो these are the three objectives of forensic basic forensic toxicology so अगर हम बात करें what are the objectives we have already done ठीक है अगर हम बात करें कि हु इज़ द मॉडर्न एंड ओल्ड फादर ऑफ फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी तो अगर ओल्ड फादर के बारे में बात करें तो ओल्ड फादर इज लाइक पार्सिलस एंड द मॉडर्न फादर ऑफ फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी इज मैथ्यू ऑर्फिला सर मैथ्यू ऑर्फिला ओके so here we cover forensic toxicology like basically who is the father of forensic toxicology and third one like who is like what are the objectives of forensic toxicology. Now we are going to talk about the forensic significances of forensic toxicology. अगर हम significances की बात करें तो cause of death क्या है वो हम पता करते हैं बेसिकली. सबसे पहला हमारा टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ. सेकेंड होता है टू डिटेक्ट द ड्रग्स ऑफ एब्यूज इन अ लिविंग बॉडी. टू डिटेक्ट द ड्रग ऑफ एब्यूज इन अ लिविंग बॉडी. एंड थर्ड वन इज टू प्रोवाइड एन एक्सपर्ट ओपिनियन in the field of forensic toxicology basically. So फोर्थ वन अगर कोई बॉडी प्रीवियसली अगर कोई लाइक पॉइजनिंग का केस हुआ है पर्सन की डेथ हुई है देन वहाँ से हम एक एंटीडोट बना सकते हैं एंड एंटीडोट थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर दैट पर्सन उसको क्या करने के लिए पॉइजनिंग से सेव करने के लिए. सो इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन लिविंग बॉडी एज वेल and dead bodies as well. Like if we are going to talk about then dead bodies में postmortem finding करते हैं हम. Postmortem toxicology में estimate करते हैं the time of death and cause of death basically. So these are the basic significances of forensic toxicology and generally हम ये भी पता करते हैं कि time of ingestion क्या था उस drug का. ठीक है अगर हमने ये सारी चीज़ें कवर करी that then now we are going to talk about what are the areas of forensic toxicology. There are three areas basically of forensic toxicology. First one is human performance. हम पता करते हैं like human की जो performance increase होती है वहाँ हम देख सकते हैं like वर्क प्लेस ड्रग टेस्टिंग में कई बार ऐसा होता है कि जो वर्क प्लेस ड्रग टेस्टिंग होती है जैसे कि कोई ऐसा प्लेस ऑफ वर्क जहाँ पे ड्रग्स दिए जाते हैं टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ ह्यूमन. And third one is the performance toxicology, like basically the postmortem toxicology, जो हमारी postmortem finding पे काम आती है. So ये हमारे हो गए. तो अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ों की बात करी. Like what are the instrument used for drug examination? कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका यूज़ करते हैं हम एग्जामिनेशन के लिए. HPLC, LCPMS, GCMS and UV examination. Like HPLC high profile liquid chromatography and GCMS gas chromatography and mass spectrometry, liquid chromatography and mass spectrometry. These are the analytical instrumentation method that we are going to use in forensic toxicology basically. तो अगर हम बात करें कि जो विसरा होते हैं जो सैंपल्स मिलते हैं हम लोगों को उनको हम प्रिजर्व किस में करते हैं. तो अगर विसरा एज यूजुअल अगर हम किसी थिंग की बात करें कि किस में प्रिजर्व करते हैं दैट वी यूज़ अ ग्लास बॉटल एक प्लास्टिक बॉटल. अगर हम ज़्यादा उस पर प्रीफर करें तो लिक्विड कौन सा यूज़ करते हैं दैट इज़ NaCl हमारा NaOH रेक्टिफाइड स्पिरिट और 10% फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं. फॉर्मलिन यूज़ करते हैं इन लाइक मेडिकल केसेस में जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनमें फॉर्मलिन यूज़ करते हैं. सो दीज आर द बेसिक्स
जो हमने बात करी आज कि व्हाट इज़ फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, एरियाज, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंसेस, and the last one is how can we preserve the viscera samples and all, and what are the analytical instrumentation method that are be used for the examination of drug specific. So this is enough for today, I think. And one more thing, uh, दो चीज़ें रह गई, दैट इज़ व्हाट इज़ आइडियल ड्रग एंड सेकेंड वन इज़ व्हाट इज़ लीथल डोज. तो in the another session we are going to talk about like on the behalf of mode of action, on the behalf of doses, and on the behalf of different things, how many different types of poisons are there. बट इसमें हम बात करेंगे कि जो हमारे पॉइजन्स होते हैं उनमें बेसिकली इसमें हम बात करेंगे लीथल डोज और हमारे उसके बारे में, आइडियल ड्रग के बारे में. सो इफ़ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट लीथल डोज इज़ अ डेंजरस अमाउंट ऑफ डोज दैट वी आर गोइंग टू यूज इन अ फॉरेंसिक फॉरेंसिक साइंस. जो हम लीथल अमाउंट ऑफ डोज लाइक डेंजरस अमाउंट ऑफ डोज जो यूज़ करते हैं किसी पर्सन के ऊपर. सो पर्सन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट्स उसके दिखते हैं. एंड लीथल डोज डेंजरस अमाउंट ऑफ डोज वो कितने भी हो सकते हैं. लाइक एक ऐसा होता है जिसके केमिकल फीचर्स ज़्यादा हों और थोड़ा सा अमाउंट उसके लिए डेंजरस हो सकता है, कुछ के ज़्यादा हो सकते हैं. सो डिपेंडिंग ऑन द केस सेनेरियो. सो सेकेंड अगर हम बात करें तो सेकेंडरी इज़ लाइक सेकेंडरी वन इज़ लाइक व्हाट इज़ द आइडियल ड्रग. अगर हम आइडियल ड्रग की बात करें तो आइडियल ड्रग इज़ बेसिकली समथिंग लाइक जो भी हमारे आइडियल ड्रग होते हैं उनका मतलब ये होता है कि आइडियल अमाउंट ऑफ लाइक एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर जिसमें सारे जो डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हों एक ड्रग में, जो हमारे हर जैसे एसेंशियल्स को कंप्लीट करे, हर डिज़ायर्ड फीचर्स को कंप्लीट करे. सो दैट इज़ द आइडियल ड्रग. So stay tuned for more and thank you so much for watching this video. In the next session we are going to talk about the types of poisons on the behalf of doses and mode of action and origin and all. So thank you so much. Stay tuned for more. This is Forensic Science by Isha.